Hello dear students and welcome to the another video lecture of C# with ASP.NET. Today we will learn about the object oriented concepts. These object oriented concepts are similar with the previous programming languages that we have studied like C++ and Java and VB.NET. So object oriented programming concepts will be derived from the previous programming languages and it is continue with the C# programming language. Okay. So all of us know that the C# is a programming language which is a part of Microsoft.NET framework. Okay. So C# is a programming language with the help of which we can develop several kinds of applications. Okay, we will already discuss this concept in unit number first. So today we will discuss the object oriented concept. All of us know the object oriented concept considering the terminologies like class, object, then inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction. Okay, so all these concepts are derived in C# programming language. Okay, we will discuss in the previous sessions, or we can say that in the previous semester the programming languages like C considered as a component oriented programming, or we can say that it is a pure structured oriented programming language. Okay, so structured oriented programming languages have their own weaknesses, so we will consider uh, from from C++ object oriented programming. Okay, so object oriented programming has their several advantages, several features, and all these features can considered in C# programming language also. Okay, so object oriented programming is what? So we can consider the object and class. So first entity in object oriented programming is class, although it is considered as, we can say that it is called as object oriented programming, but we can consider a class first and we will create the object of a class. Okay, so unless and until we can create an object from a class, we cannot use the methods and data present in the class. Okay, so class is what? Class is nothing but the collection of data member and member functions. We will continue with this discussion what is class, but now class is the collection of data member and member function, or we can say that methods and data is nothing but the class. So a particular class containing several kinds of data and several kinds of functions. Okay, to understand this, think a book having a serial number and number of pages. Okay, suppose you have two books, a science book and a computer book. The serial number of science book is SC12 and that of computer book of CS34, and the number of pages of this book is 200 and 250 respectively. So it is like a picture which is mentioned in the diagram. Okay, so we can say that आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों ने बुक नाम का एक क्लास कंसिडर किया है जिसमें आप लोगों के सीरियल नंबर एंड नंबर ऑफ पेजेस है. ठीक है, सो आप लोगों के पास में दो अलग अलग बुक्स है. एक है साइंस बुक जिसको हम लोग SC12 कहते हैं, और दूसरा है आप लोगों के पास में कंप्यूटर बुक जिसको हम CS34 कहेंगे. ठीक है, सो साइंस बुक में 200 नंबर ऑफ पेजेस है और यहाँ पे कंप्यूटर बुक में 250 नंबर ऑफ पेजेस है. ओके, सो बुक कैन बी अ क्लास. यहाँ पे आपका बुक नाम का एक क्लास है और उस क्लास में कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? पेज एंड सीरियल नंबर. ओके, सो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने एक एंटिटी बनाई हुई है बुक्स की. सो बुक्स नाम का एक क्लास आप लोगों ने बनाया है जिसमें आप लोगों के एट्रीब्यूट्स रहेंगे सीरियल नंबर एंड नंबर ऑफ पेजेस. तो यहाँ पे देखिए बुक नाम का क्लास है. अब इस क्लास का अगर हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स बनाना है, अब हम लोगों को इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो साइंस एंड कंप्यूटर आर द टू डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास बुक. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने बुक नाम का क्लास बनाया हुआ है. ठीक है, और आप लोगों ने अलग अलग इंस्टेंसेस बनाए हैं बुक नाम की क्लास के जिसको हम लोगों ने कहा है साइंस बुक एंड कंप्यूटर बुक. ओके, तो ऐसे ही आप लोगों का एक क्लास जो रहता है जिसमें आप लोग अलग अलग डेटा और अलग अलग मेथड्स रहेंगे और उस क्लास का आप लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले आप लोगों के पास एक क्लास चाहिए जिस क्लास में आप लोग आपका डेटा और फंक्शंस पहले से ही आप लोग बता सकते हो. ठीक है, सो
Basically a class something which acts like a base or a blueprint having some definition and objects are the instance of class. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल में आप लोगों ने बुक नाम का क्लास बनाया हुआ है, और साइंस बुक और कंप्यूटर बुक ये ऑब्जेक्ट है बुक नाम के क्लास का। ठीक है, तो बुक नाम की क्लास में आप लोगों के दो एट्रीब्यूट्स है, सीरियल नंबर एंड नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है साइंस बुक और कंप्यूटर बुक का, तो यहाँ पे SC12 ये उसका पहले इंस्टेंस रहेगा साइंस बुक का, CS34 ये इंस्टेंस रहेगा आप लोगों के कंप्यूटर बुक का। तो उसमें अलग और एक इंस्टेंस है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस आप लोगों को दिए गए हैं, जिसमें 200 एंड 250 नंबर ऑफ पेजेस है साइंस बुक और कंप्यूटर बुक में रिस्पेक्टिवली। ओके, सो और अगर हम एग्जांपल देखते हैं डिटेल में, तो आपके पास में बैंक का एग्जांपल रहेगा जो रियल वर्ल्ड में भी हम लोग यूज़ करते हैं। वन मोर एग्जांपल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, बैंक अकाउंट का एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आप लोगों का क्लास और आप लोगों के ऑब्जेक्ट का जो आप लोगों का जो नॉलेज है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास में एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, अब अकाउंट नाम के क्लास में थिंक एन अकाउंट ऑफ क्लास हैविंग एट्रीब्यूट्स मिनिमम बैलेंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप लोगों के पास में बैंक अकाउंट नाम का एक क्लास है। ठीक है, और जिसमें अलग अलग दो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट नाम के क्लास में कौन से दो एट्रीब्यूट है, एक मिनिमम बैलेंस है और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बैंक में जब आप कोई अकाउंट ओपन करते हो तो ऑब्वियसली उस अकाउंट में बहुत सारा डेटा रहेगा, जैसे कि बैंक के अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर रहेगा, अकाउंट होल्डर का नेम रहेगा, उसमें बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती है डेटा के फॉर्म में। ठीक है, सो बेसिकली अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स। अब अकाउंट नाम के क्लास में आप लोगों का डेटा कौन सा हो गया, आपका अकाउंट नंबर, सेकेंड चीज़ आप लोगों का अकाउंट होल्डर का नाम, बैलेंस। ठीक है, उसका अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग है, करंट है, फिक्स्ड है वो। ठीक है, सो दीज ऑल काइंड्स ऑफ ए डेटा विच इज प्रेजेंट इन द अकाउंट क्लास। और उसके मेथड्स कौन से रहेंगे, उसके फंक्शंस कौन से रहेंगे, जैसे आप लोगों को अकाउंट ओपन करना है, ओपन अकाउंट, क्लोज अकाउंट, अगर आप लोगों को अमाउंट निकालना है तो विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, तो ये सब रहेंगे उसके मेथड्स। तो जब तक आप लोग किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप उस क्लास में एग्जिस्ट करने वाले मेथड्स को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेथड्स को आप तभी यूज कर पाएंगे जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास में एक अकाउंट नाम का क्लास है, अकाउंट नाम के क्लास में आप लोगों का बहुत सारा डेटा है, जैसे अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नेम है, अकाउंट टाइप है, उसका बैलेंस है, ये उसका डेटा हो गया। फिर ओपन अकाउंट, क्लोज अकाउंट, शो बैलेंस, विड्रॉ अमाउंट, ये सब उसका मेथड्स हो गया। तो ये मेथड यूज करने के लिए आप लोगों को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों को C# में भी आप लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, तभी क्लास में एग्जिस्ट करने वाले मेथड्स को आप लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया आप लोगों को, ये सब बेसिक चीज़ें हैं क्लास और ऑब्जेक्ट में यूज होने वाली। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों ने ऑलरेडी भी यहाँ पे आप लोगों ने कंसिडर किया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप लोगों को कुछ कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं, उस कीवर्ड को हम लोग यूज करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ठीक है, सो दीज आर द अकाउंट्स एंड देयर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंस्टेंसेस। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए C# में हम लोग कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं देख लिए। यहाँ पे आप लोगों को क्लास है, यहाँ पे क्लास नाम की कीवर्ड की मदद से क्लास नेम, देन ओपनिंग एंड करली ब्रेसेस, ये आप लोगों को क्लास का स्कोप बताने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इस तरीके से आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर यूज करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास में ये आप लोगों का जो रहेगा डेटा रहेगा और यहाँ पे आप लोगों के मेथड्स रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसका जो है आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसमें एग्जिस्ट करने वाली मेथोडोलॉजीज यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट्स के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के बारे में, या फिर एक सिंपल एग्जाम्पल जिसकी मदद से हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट्स की जो टर्मिनोलॉजीज है हम C# में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, उसको यूज़ करना कैसे करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को क्लास जो है वो मेथड मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस रहेंगे, उसके अंदर अलग अलग डेटा रहेगा और अलग अलग टाइप्स का जो फंक्शंस रहेगा। फंक्शंस तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब आप लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।